Very good evening to you all students who are joining this session of second semester skill development in sociology. As you are with us since beginning, you know well we have covered writing skills, and here only writing skills have been given, but we have covered all four: reading, writing, listening, and speaking skills. Now, the next was research and project development. What is the importance of research and project development in skill development in sociology? What is relevance of this subject? I have very well explained yesterday and completed this session, and maybe day after tomorrow you will be able to get to go through your online examinations for vocational courses also that have been prepared, and I will be able to deliver to you tomorrow. Now today we will start cultural competence. What is cultural competence means is, and how it is relevant in skill development in society. It is an important topic you will go through today. So I am directly going towards our presentation, which will help us to understand this topic and this unit today. Just a moment. सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताइए। सर कल हमारे करिकुलम का इंटरनल एग्जाम है। नहीं, ओके सर, थैंक यू सर। कल नहीं, कम से कम 5 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। So now I hope you will be seeing the screen. Unit 3, cultural competence. Okay. जैसा हमने सबसे पहले ही आपसे कहा था कि जब भी आप किसी चीज की पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी कोई शब्द आता है नया, उस शब्द को आपको अच्छी तरीके से पता लग जाए, ये जरूरी है ना। आप देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र हैं जो आप देख रहे हैं। चित्रों के द्वारा किसी भी पढ़ाई को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हेलो लिखा है, किसी में हेलो और एक तरीके से हाय लिखा है, किसी में हेज लिखा है, सैल्यूटेशन लिखा है, किसी में सियाओ लिखा दिखाई दे रहा है, किसी में कुछ है somewhere we are unable to read because that is in different language. What is this? What this particular picture is representing? This means we are from different cultures, we are from different sects and communities. While we meet together, how we will be able to be a part of a project or any type of event where there are different type of peoples have to meet and engage in that particular activity. This is. Now you will see what cultural competence is in second unit. Here you can see, sorry, cultural competence also known as cultural competency or cultural proficiency. देखिए, प्रोफिशिएंसी शब्द से तो आप सभी लोग परिचित होंगे ना। प्रोफिशिएंसी शब्द सभी लोग जानते हैं, बताइए। जिसमें जैसे आपसे कहा जाता है आर यू प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, देन व्हाट यू सेज, एक फ्लुएंसी होती है, एक प्रोफिशिएंसी होती है। प्रोफिशिएंसी मींस होता है प्रोफिशिएंट कहते हैं ना हम लोग सक्षम है। तो पूरा पूरा देख लीजिए, सब तब आएगा निकल के। कल्चरल कंपिटेंस
also known as cultural competency or cultural proficiency, refers to the ability of individual organization or systems to effectively interact, communicate, and work with peoples from diverse cultural backgrounds. इतने से आप समझ लीजिए कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और उसमें प्रत्येक व्यक्ति के आपस में एक दूसरे से संपर्क करने की जो उसकी प्रक्रिया है, जो तरीका है, और जिसके द्वारा मिलके सभी एक काम या उसको वो कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चरल कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है, हमारा कल्चर अलग है, हम हिंदू हैं, हमारा अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, ज्यूज का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है। हम अपने धर्म, अपने रिचुअल्स, अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी एक्सरसाइजेस को हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे और दूसरे का भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। हम उसको गलत नहीं कहेंगे और अपने आप को बेहतर नहीं ठहराएंगे, इसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट अल्टीमेट क्या है? कल्चरल कॉम्पिटेंस इज एसेंशियल इन वेरियस context including healthcare, education, business and social services as it promotes inclusivity, reduces disparity and enhances the quality of interactions and services. तो कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या है? सांस्कृतिक आपकी जो क्षमता है, सांस्कृतिक आप में जो दक्षता है, सांस्कृतिक अडोप्टेंस है आपकी, वो आपको बहुत सारे क्षेत्र, चाहे आप हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो या सोशल सर्विस में हो, इन सभी में आपको एक जैसे जिसको हम कहते हैं एक ग्रुप के रूप में अनुभव करवाएगी और इससे आपके अंदर जो विभिन्नताएं हैं तमाम, उन विभिन्नताओं में भी एकता का बोध कराएगी और इसमें आप में सभी में एक इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान और सर्विसेज के लेन देन में ये सहायक होगी और उसमें आने वाली जो डिस्पैरिटीज हैं, जो अनियमितताएं हैं, उन्हें ये दूर करेगी। तो कल्चरल कंपिटेंस का मतलब ये हो गया कि विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथों में रहते हुए भी हम लोग एक साथ कहीं भी काम करते हैं, चाहे एजुकेशन में, चाहे सोशल सेक्टर में, हेल्थ केयर में या किसी में भी, अपनी चीजों को मानते हुए हम एक होके काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये पीपल्स हैं, इनके एथनिसिटी है, कल्चर इनका अलग है, अलग अलग नेशंस भी हैं, इनमें डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, विश्वास सबके अलग अलग हैं, फिर भी हम सभी एक साथ ही हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, आइदर दे आर फ्रॉम एनी part of this sphere. Now here you will be able to better understand what is cultural competencies. Cultural competence means being aware of your own culture, beliefs, and values, and how these may be different from other cultures, including being able to learn about and honor different cultures of those you work with. देखिए बहुत स्पष्ट है, इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। कल्चरल कंपिटेंसी का मतलब है कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के और अपने विश्वासों के, अपनी मान्यताओं के बारे में आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये किस तरीके से किसी दूसरे से अलग हैं, और ये जानते हुए आप अपने विश्वास, अपने मूल्य और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और ऐसा ही आप अन्य लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, आप उनमें कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। गुड इवनिंग ऋतिक। व्हाट इज कल्चरल कंपिटेंस?
It is a process that allows individuals to accept, respect and work with others who are different from them. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक साथ विभिन्न तरीके के धर्मों के, संप्रदाय के लोग आपस में काम करते हैं और वो एक दूसरे को उनके जो भी गतिविधियां हैं उनको स्वीकार करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट पे करते हैं। अगला है कल्चरल कंपिटेंस इज द रिजल्ट ऑफ अवेयरनेस ऑफ योर ओन बायस्ड एंड नॉलेजेस ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस कल्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। कल्चरल कंपिटेंस एक रिजल्ट है किसका? आपकी इस जागरूकता का कि आप पूरी तरीके से जानते हैं कि आपका धर्म जो है उसमें, तो उसके धर्म के प्रति आप पूरी तरीके से जागृत हैं। योर ओन वॉइसेस, आपकी अपनी विश्वास है कि आप किन चीजों में किन बातों में कितना धर्म में विश्वास रखते हैं, और आपके अपने बायसेस मीन्स होता है जिन चीजों को आप बिना तर्क के मानते हैं। और आपका मानना है, जैसे मुस्लिमों का मानना है कि मूर्ति पूजा गलत है, नहीं होनी चाहिए, और हिंदू मूर्ति पूजा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो मुस्लिमों को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदू हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, और हिंदुओं को भी इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम जो हैं वो नमाज क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीजें अपने अपने बिलीफ्स हैं, अपने अपने बायसेस हैं, अपने अपने वैल्यूज हैं, अपनी अपनी सिस्टम्स हैं, उन्हें सब फॉलो करते हैं। The process require the development of skills, attitude, and behaviors that allow individuals to understand and interact effectively with people from other cultures. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कल्चरल कॉम्पिटेंस का, जिसमें पहले तो आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं, फिर ये जानते हुए कि दूसरे का धर्म और गतिविधियां अलग हैं, उन्हें आपको स्वीकार करना है, उन पे उनके अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स आपको नहीं करने हैं। और इसके साथ में आपको क्या करना है कि द प्रोसेस रिक्वायर्स, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अन्य लोगों के बिहेवियर, उनके सोच विचार, उनका आचरण, उनकी बौद्धिक क्षमताएं, उन सभी को जानते हुए allow peoples to understand and interact effectively with people from other cultures. तो विभिन्न कल्चर्स में जब आप जाते हैं तो उनके एटीट्यूड, स्किल्स और बिहेवियर्स को आप भी सीखते हैं और वो भी आपसे सीखते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कॉम्पिटेंसी की जिसमें आप धार्मिक रूप से किसी पे कोई कमेंट या उनकी मान्यताओं या उनकी सोच विचार पे कोई ऐसी बातें नहीं करते हैं जो गलत हो, चाहे वो सही लग रही हो आपको या गलत लग रही हो। अब यहाँ पे आ गए हम, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल कंपिटेंस। जो कल्चरल कंपिटेंसी है उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? सबसे पहला है कल्चरल अवेयरनेस। जिस सभ्यता के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आप जागरूक हो। जैसे मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं तो मुस्लिम्स क्या है, ये किस धर्म को फॉलो करते हैं, ये किस भगवान को फॉलो करते हैं, इनकी मान्यताएं क्या है, काबा की इनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, या हिंदू हैं तो उनके लिए अयोध्या या काशी क्या इम्पोर्टेंस है, उनका अपना क्या मानना है। कल्चरल नॉलेज, आपको अपनी सभ्यता या दूसरी सभ्यता के बारे में कितना ज्ञान है, उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो देखिए, द इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन कल्चरल बिलीफ्स, बायसेस एंड perspectives। आप अपनी कल्चर के अंतर्गत आने वाले जो विश्वास हैं या वॉइसेस हैं या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके बारे में जो भी सोच विचार है, लोगों का क्या मानना और सोचना है, ये सब चीजें उसमें आती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल नॉलेज। कल्चरल कल्चर के अंतर्गत आपकी हिस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और सोशल नॉर्म्स, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये कल्चरल अवेयरनेस और कल्चरल नॉलेज, ये दो हुए इसके कॉम्पिटेंसी के कंपोनेंट। नेक्स्ट हम जाते हैं, तो कल्चरल सेंसिटिविटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कल्चरल सेंसिटिविटी के अंतर्गत क्या आता है कि आप किसी भी संस्कृति या सभ्यता के बारे में, चाहे वो जैसा भी है, आप वो जो लोग फॉलो करते हैं
वो उसे फॉलो करेंगे। उनके प्रति आपको संवेदनात्मक रहना है। आपको किसी भी तरीके से उनको उनकी संवेदनाएं या जो भी उनके धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको चोट नहीं पहुंचानी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि हमारी सभ्यताओं में सभी में आपस में बोल चाल का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका डिफरेंट होता है। तो जब हम अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं तो हम ये देखें कि पर्टिकुलर कल्चर में किस तरीके से बैठते हैं, कैसे उठते हैं, अपने गॉड के प्रति वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, ये सब सीखने की जरूरत है जिससे उनके साथ आप इंटरेक्ट हो सकें। नेक्स्ट है cultural competence in decision making and respect for cultural differences. अब cultural competence in decision making क्या है? Cultural competence extend to decision making process. It involves considering the cultural context and potential cultural implications of decisions. This could mean tailoring services, policies, or solutions to accommodate the specific needs of diverse grounds. अब क्या होता है कि कल्चरल कंपिटेंस और डिसीजन मेकिंग, जब भी कोई गवर्नमेंट या जब भी कोई योजना, जब भी कोई प्लान बनता है तो इन चीजों को ध्यान में रख के बनता है कि कल्चरल कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। हम जिनके लिए कोई योजना बनाने जा रहे हैं उनके बारे में अगर हमें नहीं पता है तो हम वो योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट है, अगर मुस्लिम्स के लिए कोई वो योजना बनाने जा रही है, हज हज वगैरह के कोई रूल चेंज करने जा रही है, तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस, हमेशा जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करें, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों। आपको उनसे बिना वाद विवाद के उन्हें एक्सेप्ट करना है। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंसी? अगले इक्विटी एंड इंक्लूसिबिलिटी। इक्विटी एंड इंक्लूसिबिलिटी में क्या है कि इक्विटी जो है ना, वो एक इंडिविजुअल यूनिट है। जैसे आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, आप स्वतंत्र हैं, रोड पे चाहे जैसे चलें, अगर रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है और आपको मालूम है रोड पे अगर ट्रैफिक है तो आप अकेले स्वतंत्र चलें, जी चाहे जहां मोड़े, जी चाहे जहां करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब आप अकेले हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोड पे चाहे जैसे भी चाहे जिस तरीके से भी चलें, चल सकते हैं। धार्मिक रूप से भी आप अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे एक ही धर्म के लोग हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा धर्म के लोग हैं तो आपको उनकी सभी मान्यताओं को एक काग्र रूप में लेके चलना पड़ेगा। उन्हें सभी को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। किसी भी जगह पे, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे कोई भी सोशल एक्टिविटीज हो, उन सभी में इन चीजों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट है, देखिए जो शब्द अभी आया था इक्विटी एंड इंक्लूसिबिलिटी, इसको मैंने फिर से एलोब्रेट किया है, जरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये डाइवर्सिटी है। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जीव है, जैन है और तमाम है। ऑल द वेज इन विच पीपल्स डिफरेंट, ये सब डिफरेंट है। ये इक्विटी है। ये सब अब लाइन में है। ये जितनी योजनाएं हैं सभी के लिए कॉमन है। जितनी चीजें हैं, जो अधिकार हैं, वो सभी के लिए कॉमन है। संविधान सभी को सारे अधिकार देता है और सारी मान्यताएं देता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, कहीं ईसाई, कहीं धर्म, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो इसको हम इंक्लूजन कहलाते हैं। ये अलग अलग फैले हुए हैं और इन्हीं को अकेला यहाँ पे एक रख दें तो ये अकेला हो जाएगा। जैसे कोई गांव है उसमें केवल हिंदू ही रहते हैं तो वो एक अकेला एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा। एक गांव है जहाँ पे कुछ हिंदू रहते हैं, कुछ मुस्लिम भी रहते हैं, कुछ सिख भी रहते हैं, तो इस तरीके से किसी डिस्ट्रिक्ट को ले लो या किसी बड़े एरिया को ले लो जहाँ पे आपको ये डाइवर्सिटी मिलेगी। फिर डाइवर्सिटी में हमें इक्विटी क्रिएट करनी है और इससे इंक्लूजन तैयार करना है। शायद अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कल्चरल कॉम्पिटेंसी के और क्या है? इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी। अब अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। हम इंडिविजुअल भी हैं, उसके बाद भी हम इंक्लूसिव हैं। कंटिन्यू लर्निंग,
अब कंटिन्यू लर्निंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमें हमेशा सीखते रहना है। कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर्स, इनके बारे में सब कुछ चीजें क्लियर होती रहनी है। एंड कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, ये नेक्स्ट में मिलेगा आपको। कोई भी शब्द देखिए, मैं आप सभी से एक चीज ये कहूंगा, कोई भी शब्द जो आता है अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मैं जानना चाहूंगा आप में से स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? कोई जानते हैं तो बताइए। मैं कई बार पढ़ाता हूँ, पढ़ाता जाता हूँ, लेकिन मेरे को पता होता है कि ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। मैं अगर ऐसी हर जगह पर रुकूं तो मैं रुक सकता हूँ, मेरे को मालूम है आपको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ जाता हूँ कि शायद आप क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पूछते। आप जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं उनमें से मैं जानता हूँ 90% लोगों को स्टेक होल्डर का मतलब नहीं पता होगा। किसी को पता है तो बताइए। और देखिए, इतनी देर पर्याप्त होती है इंटरनेट पर आपको इसका अर्थ ढूंढने के लिए। गूगल बाबा की शरण में जाके आप ढूंढ सकते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप ढूंढने के लिए जरूर जाएं, लेकिन आंसर बताने के लिए न ढूंढें। आंसर अभी यहाँ जाने, उसके बाद में भी अगर क्यूरियोसिटी रहे तो उसे जरूर ढूंढें। या मैं आंसर न दूं आगे बढ़ जाऊं तब आप जरूर ढूंढें। स्टेक होल्डर्स किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले वो लोग, दीक्षा का कहना है इन्हें पता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। किसी भी प्रतिक्रिया के अंतर्गत आने वाले ऐसे लोग जो उससे प्रभावित होंगे। जैसे कोई बैंक डूब गई, उसमें आपका रुपया जमा था, तो आप उसके स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप उसके कंपोनेंट हैं, आप उसके एक पार्ट हैं किसी भी चीज के जिससे आप प्रभावित होने वाले हैं। ठीक, तो कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, तो कल्चरल कंपिटेंसी में हमारा समाज और समाज में जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उन सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए। वाई कल्चरल कंपिटेंसी इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कल्चरल कंपिटेंसी की आवश्यकता क्यों है? देखो, ये ड्रेसिंग से ही हमें लग रहा है कि अरब कंट्रीज के लोग हैं। इन्होंने सिर पे बांधा हुआ है और ड्रेसिंग अलग है। पीछे जो खड़े हैं, लेडी खड़ी है, इन्होंने भी आ, अलग ही ड्रेसिंग है, दिखाई दे रहा है कि ये मोमेंट्स हैं। इधर ये दिखाई दे रहा है कि ये कोई अदर कंट्री से हो सकते हैं, मे बी इंडियन हो सकते हैं, टाई वाई पहने हुए हैं। पीछे जो वुमन खड़ी दिखाई दे रही है, इससे ये जरूर नहीं है इंडियन हो। इंडियंस की कम होने की संभावना है, क्योंकि इस तरीके के कपड़े अभी तक इंडिया में ऑफिशियली लोग नहीं पहनते, है ना। तो कहीं के भी हों, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि इनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं बहुत बड़े, है ना। तो अब ये जब मिलते हैं तो अब ये आपस में किस तरीके से अपनी बातों को शेयर करें। अब यहाँ पे आता है कल्चरल कंपिटेंसी का की जरूरत। तो cultural competency can be beneficial in the workplace. It can improve communication among workers, encourage empathy, and promote active listening skills. तो कल्चरल कंपिटेंसी का रोल यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इन दो में से कोई एक ऐसा होगा जो अरब कंट्रीज, अरब की लैंग्वेज और उनके बारे में जानता होगा। इधर ये टाई पहने हुए खड़े हुए हैं साहब, देखो, ध्यान देने की चीज है चित्र पे। टाई पहने हुए हैं, लेकिन सिर पे जिस तरीके की इन्होंने टर्बन और वो रिंग टाइप की डाली हुई है, इससे अर्बन है। लेकिन इनकी टाई और इनकी टाई मैच कर रही है। इसका मतलब ये इनकी भाषा को जानते हैं और ये इनकी भाषा को जानते हैं। तो ये काम करेंगे इंटरप्रेटर का, ये इनकी भाषा को इसमें इंटरप्रेट करेंगे, ये इनकी भाषा को इसमें इंटरप्रेट करेंगे। और इधर ये दो लेडीज हैं, इन दो लेडीजों के हाथ में कुछ है, देखिए, है ना, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। इनके इनके हाथ में कुछ है, ये क्या है बताइए?
अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए क्या है, कोई बताएगा? मे बी इनकी कॉन्ट्रैक्ट फाइल। यस, जी सर। डेफिनेटली श्योर। ये एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल होगी जो यहाँ पे दिख रही है, और ये इनकी सेक्रेटरीज होंगी, है ना। और ये जो दो लोग हैं, ये कोई भी ऑफिशियल्स होंगे जो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन बनाएंगे, है ना। तो यहीं पे कल्चरल कॉम्पिटेंसी, ये डिफरेंट कल्चर है। अब ये बंदा इस कल्चर को कितना समझता है और ये बंदा इस कल्चर को क्या समझ कैसे समझता है। जैसे हम कई देशों में जाते हैं तो लोग हाथ मिलाते हैं और कुछ नमस्ते करते हैं, और कई लोग हग करते हैं, और कई लोग और डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। कई लोग ग्रीट करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो दिस इज कल्चरल कॉम्पिटेंसी। हमें उस देश, जिस देश में जा रहे हैं उसके बारे में एक बंदे को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। वो क्या कहलाता है? इंटरप्रीटर। तो अब यहाँ पे कल्चरली competent employees are more productive and cooperative with each other. Cultural competency is not just nice to have but must have. तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी जो है उसका अर्थ केवल ये नहीं है कि नाइस टू हैव जो है अच्छा है, ये नहीं है, बल्कि विश्वास ये है मस्ट हैव, ऐसा होना ही चाहिए। डाइवर्सिटी हो, उसमें भी इंक्लूजन हो। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंसी। कल्चरल कॉम्पिटेंसी के 5 एलिमेंट्स हैं। पहला, आप उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उन्हें पहचानें, और आप अपनी कल्चर को पहचानें, खुद का अपना आकलन करें, और कल्चरल जो नॉलेज है और स्किल्स है उन्हें और एक्वायर करें, उन्हें मतलब जानें और समझें। और जब कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वहां पर लोग किस तरीके से कैसे क्या कर रहे हैं, उस तरीके से आप एक्टिव करें। आप 5 स्टार होटल में पहली बार जाएं, वहाँ टेबल मैनर्स होते हैं, बैठ के कैसे खाना खाया जाएगा आप नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को देखें, इसके बाद में उसे फॉलो करें। कल्चरल कंपिटेंस अप्रोच क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बारे में कितने जागरूक हैं। अदर अवेयरनेस, अन्य लोग कितने अपने अपने बारे में जागरूक हैं और आप दूसरे के बारे में कितने जागरूक हैं। ब्रिजिंग स्किल्स, वो स्किल्स जो आप दोनों लोगों के बीच में तालमेल बनाएंगी, ये इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है वाई कल्चरल कंपिटेंस इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ये कल्चरल कंपिटेंस है ये जरूरी क्यों है? डाइवर्सिटी इन दी वर्क प्लेस, कहीं भी जहाँ आप जॉब करेंगे वहाँ पे तमाम देश के लोग भी हो सकते हैं, और तमाम, ये तो है ही निश्चित रूप से, इंडिया में हिंदू मुस्लिम वगैरह तो होंगे ही, वर्ल्ड में जाएंगे तो बहुत तरीके के लोग होंगे। अगर आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्लोबल बिजनेस अपना ले जाना चाहते हैं, तो भी इंक्लूसिव एंड इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग डबल बार हो गया, इन सब के लिए इसकी जरूरत होगी। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सब चीजें काफी कुछ एक्सप्लेन है, थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा है। तो यहाँ पे ये सब चीजें अंडरस्टूड हैं। इंक्लूसिविटी आपको पता लग गई है। अब यहाँ पे देखिए आप कितने डिफरेंट लोग हैं। सरदार जी भी हैं, एक इंडियन है, एक और कहीं की लग रही है निग्रो टाइप की, एक और कोई इंग्लिश टाइप की लग रही है, एक कोई फ्रेंच टाइप की लग रहे हैं, अलग अलग हैं। तो इससे इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें क्या होता है, सभी को समान अधिकार, समान मौके, समान चीजें सब दी जाती हैं, और इसमें सभी, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होता। और अगर एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति को हम लोग जानते हैं तो हमें आपस में झगड़े कम होते हैं,
लीगल एंड एथिकल कंप्लाइंसेस कई कंट्रीज में तो नियम है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे शायद आप लोगों ने पता होगा, जर्मनी में जिस समय हिटलर था, उस समय यहूदियों के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा सिंबल लेके बाहर निकलेंगे, घर से जब भी बाहर निकलेंगे, कि पता लगे कि यहूदी हैं। जैसे गले में कोई सिंबल स्पेशल डाले हुए होंगे वो, या कपड़े विशेष तरीके के पहने हुए होंगे जिससे पता लगे यहूदी है। अगर यहूदी ऐसे ही निकल आया तो उसको फांसी तक दी जा सकती है। और आपको मालूम है हिटलर ने लगभग कितने यहूदियों को मरवा दिया था, पता है? कोई बता पाएगा? लाखों की संख्या में 60-70 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। और वो कैसे मरवाता था मालूम है? पढ़ा है आप लोगों ने कभी? बताइए अगर किसी ने पढ़ा है तो। बरखा बताइए सर कुछ कभी अगर बताना चाहे। सर कभी कभी बताइए। पब्लिकली हैंग होता था, और कभी कभी शॉट इन द हेड शॉट। सर उसका कभी 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 अपने सर सर्वेंट्स के तौर पे भी वो मरवा देता था सर। वो क्या सर उनको करता अपने था, सर्वेंट्स रखता था और सर कोई काम नहीं कर पाते थे और तो उनको सर उनकी डेथ कर देते थे। काम भी कर पाए तमाम, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। एक बड़ी चीज मैं बताऊं, सर ट्रेन, बाकी एक कतार में सर एक कतार में खड़ा करके सर उन सबको एक साथ खत्म किया जाता था सर। इससे भी आगे की मैं बात बताता हूँ कि सर एक वो होता सर एक रूम होता था जिसके अंदर क्या कहते हैं सर एयर जो होती है वो बंद हो जाती थी सर। सर बिल, उसके अंदर डाल दिया जाता था उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर मतलब एक सर रेफ्यूजी कैंप हुआ करता था वहां पे जितने भी यहूदी होते थे उन सबको वहां पे रखा जाता था। और हर एक हफ्ते में एक पूरा पूरा का एक बैच को लेकर एक रूम में डाल दिया जाता था जिसमें 2-3 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती थी। तो ऑक्सीजन खत्म होने के चक्कर में लोग एकदम से मतलब उछल कूद करने के चक्कर में वो सर अपने आप ही डेथ हो जाती थी उनकी बिल्कुल सफोकेशन सही, के चक्कर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या होता था कि ट्रेन्स में भर के यहूदी लाए जाते थे, 4-4, 500, 500, हजार, और उन्हें एक गैस चैम्बर वाले चैम्बर में डाल दिया जाता था। और उसके बाद में उसमें शीशे लगे होते थे जिनमें उनमें मरता हुआ वो देखा करता था उन्हें, और मरते हुए देख के उसे खुशी मिलती थी, मालूम है? यस सर। और एक देश था जिसका राष्ट्रपति जो था वो बच्चों का मांस खाता था। कौन सा देश है मालूम है? उस देश में बच्चे बहुत गायब हुआ करते थे। फिर बाद में पता लगा कि वो राष्ट्रपति जो है वो बच्चों का मांस खाता है। और उसके बाद में जब पता लगा तो वो जंगलों में भाग गया। उसके बाद पकड़ के लोगों ने उसे मार डाला था। अभी की बात है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल हुए होंगे, 10 साल हुए होंगे मैक्सिमम। सर ये भी एक यूरोप का था सर शायद से। यूरोप नहीं, अफ्रीकन था। ओ और सॉरी सर अफ्रीकन। उसका नाम था ईमीन अदीबी, ऐसा ही कुछ नाम था। और बहुत ही मतलब बच्चों का मांस खाता था, समझिए आप। तो बड़े बड़े विचित्र मानसिकता वाले लोग रहे हैं। और आपको मालूम है वो ये जो हिटलर था यहूदियों से इतनी ज्यादा घृणा क्यों करता था, मालूम है? सर ये वजह मालूम ही नहीं है सर। इसकी वजह एक ये है, देखिए, अंग्रेज और ये फ्रांस, इनमें अक्सर युद्ध होते रहते थे। और ये जो था क्या नाम है, हिटलर, एक तो परफेक्ट बच्चा था। डेस्टिट्यूट चाइल्ड जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है? जानते हैं कि नहीं? सर एक बार रिपीट परफेक्ट, कर सकते हैं आप। परफेक्ट बच्चा या डेस्टिट्यूट चाइल्ड, DSTITUTE, ऐसे बच्चे जिन्हें माँ बाप पैदा होते ही छोड़ देते हैं, उन्हें पालते नहीं, उन्हें या तो फेंक देते हैं या जो अनाथालय होते हैं उनमें छोड़ आते हैं। ऐसा बच्चा था जिसको कोई प्रेम प्यार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जिसने केवल कष्ट परेशानी और दुख झेले। उसके बाद में ये वहां की सेना में भर्ती हुआ। और जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो ये क्या हुआ कि सैनिक था, जान बचाने के लिए एक यहूदी के घर में घुस गया। तो
तो उन यहूदियों ने क्या किया, वो यहूदी भी वहीं के थे, फ्रांस के थे, और वो उसी देश के नागरिक थे। तो ये उम्मीद करता था कि उस देश के नागरिक हैं तो ये उनका सहयोग करेंगे और उसे बचा लेंगे। लेकिन उन यहूदियों ने इसको पकड़वा दिया अपने घर से। तब से ये उनसे नफरत करने लगा कि जो अपने देश के नहीं है, और तो फिर ये किस काम के, यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। तब से उनसे नफरत करता था ये, इसलिए यहूदियों से बहुत ही ज्यादा नफरत थी उसे। आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस्ड कन्फ्लिक्ट। और इसके बाद में रिड्यूस्ड कन्फ्लिक्ट और वही चीजें हैं, कुछ खास इनमें नहीं है। चक्कर क्या है, कुछ डुप्लीकेट हो गई है कहीं, सॉरी। ठीक है। द बेनिफिट ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में इक्विटी आप लोग जान गए अच्छे तरीके से। जान गए ना सभी। इंडिविजुअल और डाइवर्सिटी, विभिन्न तरीके की वो गोलियां रखी दिख रही थी, कोई नीली पीली लाल हरी। इंक्लूजन, सब एक साथ। और बिलोंगिंग्स, फोकस्ड ऑन पर्सनल एक्सपेरिमेंट एंड वैल्यूज। अपने अपने जो मान्यताएं हैं आप उन्हें माने, चाहे जो करें। ये इंटर कल्चरल इन वो कॉम्पिटेंस है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं फिर भी एक साथ मिलके एक साथ काम करते हैं। जैसे यूएनओ है, पूरे दुनिया के देश उसमें जुड़े हैं, सभी पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के ऑब्जेक्ट से काम करते हैं। तो इसमें क्या है, कल्चरल competency इन द वर्क प्लेस इज नॉट ओनली मैटर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो साउंड बिजनेस स्टडी। केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करना नहीं है, लेकिन बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से चलाना इनका एक मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स। कहीं भी जब आप काम करेंगे तो वहां तमाम अलग अलग तरीके के लोग होंगे। इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो कॉम्पिटेंसी है ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा सहायक होती है। तमाम समस्याओं के समाधान अलग अलग लोगों के सोच विचार और अलग अलग तरीके से निकलते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल कॉम्पिटेंसी में बेनिफिट ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंसी। कल्चरल जो वो है कॉम्पिटेंसी, उसके बेनिफिट्स क्या हैं तो आप जानते हैं, देखिए। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इनहेंस टीम वर्क, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयबल मोरल, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। अगर इसमें किसी कुछ ना पता लगे तो जरूर पूछ लेना। ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इंटरेक्शंस एंड रिटेन टैलेंट, ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी। ये सभी बेनिफिट हैं किसी वर्क प्लेस में जहां आप काम करते हैं और वहां पर डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के लोग हैं, तो उनके ये बेनिफिट्स हैं। इसमें कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, कई बार समझा चुका हूँ इसलिए यहाँ डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, द की फोर्थ फीचर ऑफ अचीविंग कल्चरल कॉम्पिटेंसी। कहीं भी जहां पर आप दिक्कतें महसूस कर रहे हैं अलग अलग किस्म के लोगों के काम करने के कारण, तो वहां पर आप किस तरह से इस उद्देश्य को प्राप्त करें जो कल्चरल कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत आता है। तो इसके 4 की फीचर्स हैं। पहला है देखिए कल्चरल अवेयरनेस। देखें फर्स्ट ये, तो कल्चरल अवेयरनेस में क्या है कि जो भी लोग उस वहां काम कर रहे हैं उन्हें सभी को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। हिंदू को क्रिश्चियंस के धर्म नियम कायदे कानूनों के बारे में पता होना चाहिए, क्रिश्चियंस को हिंदुओं के, मुस्लिमों के, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी को उनके विश्वास, उनके धार्मिक चिन्ह, उनके प्रतीक, उनकी मान्यताओं के बारे में और अपने खुद के बारे में जागरूकता उनमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस में 3 पार्ट्स हैं, देखो। सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चर्स और कल्चरल सेंसिटिविटी। अपनी सभ्यता के बारे में उन्हें जानकारी हो, अन्य सभ्यताओं के बारे में जानकारी हो,
और उन सभ्यताओं में जो उनकी मान्यताएं हैं उनके प्रति संवेदना हो, ये जरूरी है। ठीक, ऐसे ही कल्चरल नॉलेज में डाइवर्स कल्चरल ग्रुप, अलग अलग जो कल्चरल ग्रुप हैं उनके बारे में जानकारी हो, वो अलग भाषा बोलते होंगे, अलग तरीके के कपड़े पहनते होंगे, अलग तरीके का खाना खाते होंगे, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग होंगी, इस तरीके से होंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्या है? जब आप एक दूसरे को कल्चरली अच्छी तरीके से जानते होंगे तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है ना। यहाँ पे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखें, रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। डिफरेंट सेक्ट और डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कास्ट होने के बावजूद भी इंक्लूसिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इंक्लूसिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप चाहे उर्दू जानते हैं, चाहे हिंदी जानते हैं, चाहे इंग्लिश जानते हैं, एक ऐसा जरिया जरूर होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे की भाषा को समझ सकें, एक दूसरे को ससम्मान बात कर सकें, अपनी बात बता सकें और उसकी बात सुन सकें। इसके साथ ही क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप हिंदू हैं, मुस्लिमों का जो कल्चर है उसका सम्मान करें, मुस्लिम है हिंदू का करें। एडेप्शन टू कम्युनिकेशन स्टाइल्स, कम्युनिकेशन के जो स्टाइल्स हैं, चाहे कल्चरल कंटेक्स्ट में है, चाहे उनमें डिफरेंसेस में है, चाहे कल्चरल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं, उनको सभी को पता होना चाहिए आपको, और उन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अपने उस पर नहीं टिका होना चाहिए कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो उनकी जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं में भी एकता बनाते हुए आपस में तालमेल रखने के लिए कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा देता है। ठीक है, and this is now finally over, and your chapter is also over. So you could understand now what is cultural competency is. Now, if anybody out of you have any question, you can ask me, please. किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बड़े शांत हैं आप सभी लोग। नो अंशु, क्वेश्चन सर। अंशिका, आजरा, अंजलि, Salini is saying no question. Ragini, Ramisa, Riya, वोकेशनल पेपर कैसे एक्टिव होंगे? आई विल टेल यू टुमारो। ओके, और इसके बाद में आपके सिलेबस में इसमें 2-3 यूनिट और रह गई हैं, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। और आपके एग्जामिनेशंस भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। फाइनल डेट किस डेट में होने हैं वो आपको पता लग जाएगा, है ना। यहाँ कुछ अगर किसी को कहना हो देन इट्स ओके, अदरवाइज सेशन ऑफ किया जाए। Okay then, thank you. I'm just going to wind up this session. Thank you all to participate in today's session. एक चीज आप सभी लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग कम से कम एक बार वीडियो जरूर देखा करें, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए नहीं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमारा उसमें जो वर्किंग वो आवर्स हैं वो बढ़ेंगे या उससे हमें कोई स्पेशल बेनिफिट होगा। मेरा ऑब्जेक्ट वो नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट है कि आप किसी भी तरीके से
अपने आप को कंप्लीट डेवलप करें। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।